যখন সারা বিশ্বে কোথাও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, তখন আমাদের দেশে বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, সেটা হলো নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল 12শ সেঞ্চুরিতে, কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল 13শ শতাব্দীতে, আর নালন্দা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল 5শ শতাব্দীতে। কিন্তু 12শ শতাব্দীতে ভক্তিয়া খিলজি সেটা ধ্বংস করে এবং আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। সেই আগুন 3 থেকে 6 মাস ধরে জ্বলছিল। সেখানে অনেক বড় বড় লাইব্রেরি ছিল। একটা লাইব্রেরিতে 90 লক্ষের উপর বই ছিল, হাতে লেখা বই। সেগুলো জ্বলছিল 3 থেকে 6 মাস ধরে। এরকম 3টে লাইব্রেরি ছিল, প্রায় 2,70,00,000-এর মতো বই ছিল। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে চীন, কোরিয়া, তিব্বত, বিভিন্ন দেশ বিদেশ থেকে তারা ছাত্ররা এখানে শিক্ষা লাভের জন্য আসতো। এখানে ধর্ম, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, চিকিৎসা, জ্যোতিষবিদ্যা, যুক্তিবিদ্যা, গণিত, বিভিন্ন বিষয়ের উপর এখানে পড়ানো হতো। এই বিশ্ববিদ্যালয় কেমন ছিল, তাতে কি কি ছিল, তার ধ্বংসাবশেষ কিছু অংশ আমি আজকে দেখাতে চলেছি। কিভাবে যাবেন? যদি ট্রেনে যেতে চান তাহলে হাওড়া, কলকাতা, শিয়ালদা থেকে রাজগীর বা নালন্দা যাওয়ার কোনো ডাইরেক্ট ট্রেন নেই। রাতে পাটনাগামী কোনো ট্রেনে করে ভক্তিয়াপুর যেতে হবে। সেখান থেকে ভোরের ট্রেনে এক্সপ্রেস কিংবা মেমো ট্রেনে করে রাজগীর যেতে হবে। রাজগীরে সেখানে থেকে ওখান থেকে একটা টোটো বা অটো ভাড়া করে আপনি পাওয়ারপুরি, নালন্দা একসাথে ট্যুর করতে পারেন। আমি এখন চলে এসেছি নালন্দা ইউনিভার্সিটির একদম গেটের কাছেই। গেটের পাশে আছে টিকিট কাউন্টার, আর এখান থেকে আমাদের টিকিট কাটতে হবে। এখান থেকে টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে হবে। তো টিকিটের মূল্য 40 টাকা পার হেড। এখানে গাইড পাওয়া যায়, তো গাইডের ফিজ হচ্ছে 500 টাকা। তবে আপনারা কয়জন থাকলে কয়েকজন মিলে একটা গাইড নিয়ে নিতে পারেন। সামনে যে এই ধ্বংসস্তূপটা দেখা যাচ্ছে, এটা আসলে 1600 বছরের পুরনো বৌদ্ধ মন্দির। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে মত অনুসারে এটা উচ্চতা আনুমানিক 80 ফুট হওয়া উচিত। 5ই শতাব্দীতে এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরি হয়েছিল এবং 12 শতাব্দীতে ভক্তিয়া খিলজির দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল এবং 700 বছর পর্যন্ত মাটির নিচে চাপা পড়েছিল। খোদাই করার সময় কিছু ফটো তোলা হয়েছিল, সেই ফটোগুলি এখানে প্রদর্শনী হিসেবে রাখা হয়েছে। ये हो गया आपका ग्रेनरी हाउस, यहाँ पे जला हुआ चावल और मटका मिला, अच्छा, जो देख रहे हैं। और ये हो गया पूरा जो आप देख रहे हैं, है ना। तो ये जो हो गया सर आपका ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कि सारा कुछ नीचे है, अच्छा, जो देख रहे हैं। तो ये खुदाई किया गया, मिट्टी साफ की गई 22 साल में, 1917-18 का है। तो ये सब पूरा दिखने लगा। अब दब कैसे गया और छोटा कैसे हो गया, इसका पूरा डिटेल्स नालंदा के नाम से है इस रूप में। अच्छा, ওটা মেন मंदिर। हाँ, सबसे मेन है 1917-18 में, टेम्पल नंबर 3 के रूप में अभी वो जाना जाता है। देख रहे हैं। और इस साइड वाला मंदिर और स्तूप मिला, इसे मंदिर और जो गोल गोल देख रहे हैं ये स्तूप है। इधर वाला लाइन हो गया हॉस्टल वाला लाइन। अच्छा, ये घर बनाया था वो तो बना लिया वो भी देख रहे हैं आसपास घर है ना, लोग रह रहे थे। तो भाई धीरे धीरे करके जो है অধিগ্রহণ करके उसको जी जी এই বিদ্যালয়টি লম্বা আছে 1 কিলোমিটার আর চওড়া আছে 1 কিলোমিটার। কিন্তু এটা যখন তৈরি হয়েছিল তখন ছিল লম্বা ছিল 10 কিলোমিটার আর চওড়া ছিল 5 কিলোমিটার। বাকি 9 কিলোমিটার গ্রাম বসে গেছে। 700 বছর মাটির নিচে থাকার ফলে কেউ জানতো না যে এই মাটির নিচে একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ লুকিয়ে আছে। তাই এই মাটির উপরেই একটা গ্রাম বসে গেছিল। ইংরেজ আমলে এই ধ্বংসাবশেষ খুঁজে পাওয়া যায়। 1915 সাল থেকে 1937 সাল পর্যন্ত এই 22 বছর ধরে খোদাই চলছিল। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, চীনা পর্যটক হিউয়েন-সাং এবং বিদেশি কিছু লেখকের লেখা থেকে এই বিদ্যালয় সম্বন্ধে জানা যায়। এই বিদ্যালয়ের জন্য 200টা গ্রাম রাজারা দান করেছিল। তার আয় থেকে এই বিদ্যালয়ের খরচ মেটানো হতো। এখানে 1,500 থেকে 2,000 শিক্ষক এবং 10,000 ছাত্র এখানে থাকত। এই বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার জন্য কোনো মেন গেট খুঁজে পাওয়া যায়নি। সেই কারণে 10 ফুট চওড়া দেওয়াল কেটে
এই রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। बेसिकली 900 साल तक गुरुकुल रहा, बाद में ये यूनिवर्सिटी के रूप में तब्दील हो गया। अब ये 800 साल चला। तो इसका मेन गेट सर नहीं मिला, तो 10 फीट का दीवार काट के नया रास्ता बनाया गया। अच्छा मेनली हाँ, ये सीमेंट नया है। हाँ ये तो सही सोच रहा था, उस चीज वो तो सीमेंट नहीं था। 5वीं শতাব্দীতে গুপ্ত সম্রাট কুমারগুপ্ত এই বিশ্ববিদ্যালয়টি তৈরি করেছিল। कुमार गुप्त के टाइम का रूम था, एक हॉस्टल में 108 स्टूडेंट रहते थे, तो 36 रूम है, 3 फ्लोर का एवरी टाइम ही होता था। ये रूम था। हाँ, ये दरवाजा था जो देख रहे हैं। हाँ। तो हम लोग छत के लेवल पर ना, ग्राउंड फ्लोर नीचे है, तो उस लेवल से अपने रूम में आते जाते अच्छा, थे। अच्छा। अब 200 साल बाद सर इसकी छत डैमेज कर गई, प्राकृतिक आपदा से, भूकंप से या आग लगे से। तो राजा हर्षवर्धन जो राजा हुआ 606 ईस्वी में, उसने कहा कि भाई इसका रिपेयरिंग नहीं कराएंगे, नयाकरण कर देते हैं। तो उन्होंने ढक दिया, नीचे दब गया सर कुमार गुप्त वाला, ऐसी पुराना दीवार को बेसमान के ऊपर बना दिया। अब ये 200 साल ऊपर चला, अच्छा तो वहां तक हर्षवर्धन का मिला। उसी समय हुएन सांगा, दूसरा चीनी यात्री सिंह आया था पढ़ने, जिसने डायरी लिखा सीयू की। तो ये हो गया बीच का मिडिल पार्ट हर्षवर्धन का। फिर 200 साल बीत गया, धर्मपाल जब राजा हो गए, बिहार बंगाल का राजा धर्मपाल, तो यहाँ स्टूडेंट ज्यादा आने लगे, तो 2 यूनिवर्सिटी और बना। एक इसका पार्ट बना उदंतपुरी बिहार, जिस पर बिहार शरीफ बस गया, और 800 ईस्वी में विक्रमशिला बनाया धर्मपाल ने, समझ रहे ना। अब तीनों पैरेलल चला 1200 ईस्वी तक, सोच लीजिए कितना महान जगह था। तो आप देखिए 1600 साल पुराना ईटा जो है, इसका कैटेगराइज कर देते हैं आपको। तो ये 15 इंच लंबा दिख रहा है सर, 10 इंची चौड़ा, छोड़ा। अच्छा 15 इंच लंबा और 10 इंची चौड़ा। फिर इसके ऊपर हर्षवर्धन का 15 फीट तक, अच्छा फिर इसके ऊपर धर्मपाल का। ये हर्षवर्धन का, वो धर्मपाल का। हाँ, तो छोटा होता गया। अच्छा नया ईटा देखिए यहाँ, ये SI 1961 हाँ ये तो नया लगता है। ठीक है ना। तो ये नया ईटा है, सीमेंट नया है। ছাত্রদের থাকার ঘরগুলির বাইরের দেওয়ালগুলি ছিল 8 থেকে 10 ফুট চওড়া, আর পার্টিশন ওয়ালগুলো ছিল 5 ফুট চওড়া। এর ফলে এটা সানপ্রুফ ছিল, ভূমিকম্প রোধক ছিল, এবং ওয়েদারের টেম্পারেচারটা কন্ট্রোল হতো। দেশ বিদেশ থেকে বহু ছাত্ররা এখানে ভর্তির জন্য আসতো, কিন্তু যখন পণ্ডিতরা পরীক্ষা নিত তখন মাত্র 10% ছাত্ররাই পাশ করতো। बिहार उदंतपुरी बिहार जो अभी 1 योजन के दूरी पर है, 12 किलोमीटर पे बिहार शरीफ बसा दिया, क्योंकि मुस्लिम साम्राज्य हो गया। अब उसको तोड़ के शहर बसा लिया, उसके नाम से बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन हो गया। अब 1200 ईस्वी के बाद जो है ना, उसने महाबोधि टेम्पल को भी तोड़ दिया, जहाँ जहाँ से शिक्षा मिल रहा था सबको ध्वस्त करना शुरू कर दिया। और यहाँ की বিশ্বের প্রথম এবং প্রাচীনতম আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এই নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়, এবং সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল 12वीं শতাব্দীতে, আর কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল 13 শতাব্দীতে। নালন্দা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল 5वीं শতাব্দীতে। অতএব নালন্দা ইউনিভার্সিটি প্রাচীনতম ইউনিভার্সিটি। ये सब इसका जो है रूम था, लेकिन ये नाली है ना, बाद में आर्कियोलॉजी ने बनाया है वर्षा का पानी निकासने के लिए। हाँ, नीचे वाला मल्टी फ्लोर था ना, ये रूम था। नीचे गुप्ता पीरियड, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और वो जो वो कहाँ? सर उसके अंदर एक और रूम है जहाँ जाके वो मेडिटेशन करते थे। अच्छा ये कैसे जाएगा? इसी कनेक्टेड इंटरलिंक रूम था वो, वो अच्छा चारों तरफ से लॉक है, वही रास्ता है जहाँ जाके वो मेडिटेशन करते थे। अच्छा ये छोटा। मेडिटेशन भी चाहिए ना टीचर लोगों को, इसलिए वो मेडिटेशन वाला रूम। नीचे वाला थोड़ा रूम काट के दिखाया गया है, तो ये राउंड रूम हो गया। अब ये दक्षिण पश्चिम कॉर्नर में सीढ़ी मिला, जो वास्तु के अनुसार, समझ रहे हैं ना, दक्षिण पश्चिम कॉर्नर। हाँ, इसी जगह पे, और वो भी क्लॉक वाइज बनना चाहिए। जो इंजीनियर साहब होते हैं उनको पता होता है। अच्छा। आप भी लगता है इंजीनियर साहब हैं। और ये रूम हो गया सर, एक रूम एक स्टूडेंट के लिए लिविंग, वो भी रूम ही था, लेकिन गड्ढा के रूप में आप उसको देख रहे हैं। अच्छा यहाँ 10 बाई 10 का है, देखिए तो इनफ है कि नहीं है। এইগুলি সব ছাত্রদের রুম। প্রতিটা ছাত্রদের রুমগুলো আয়তন ছিল 10 ফুট বাই 10 ফুট। लोग बस गए होंगे, उसका अपना लोग समझ रहे हैं ना। अब अंग्रेज लोग के आते आते 10% ही बचे। 1861 में जब अलेक्जेंडर कनिंघम ने बौद्ध धर्म का, जैन धर्म का इतिहास पढ़ा कि मगध में बौद्ध धर्म का जन्म हुआ है, और यही 800 साल पूरे संसार को पढ़ाया है। तो उसने खोजा, हुएनसांग का डायरी मिला उसको, तो उसको ट्रांसलेट किया, फिर पता चला कि नालंदा का ये लोकेशन है। तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको ढूंढा। सर भारत का बहुत सा चीज उसी ने ढूंढा, अलेक्जेंडर कनिंघम ने ही। अच्छा तो लोगों को पता चला, तब जाके भी कट्टर में आर्टिकल प्रमाणित किया, फंड इसका खुदाई के लिए प्रपोजल भेजा। এখানে লাইব্রেরি ছিল 9 তলা,
তাতে 90 লাখের বেশি হাতে লেখা বই ছিল। এরকম 3টে লাইব্রেরি ছিল, অর্থাৎ 2,70,00,000-এর বেশি বই ছিল। এই ঘরগুলিতে ছাত্ররা থাকা, খাওয়া এবং মেডিটেশন করত, আর পড়াশোনার জন্য তারা বাইরে গিয়ে করত। पढ़ना दोनों इसी में, एक ही जगह है? इस एक ही जगह इधर रहिए और इधर पढ़िए, अच्छा अच्छा। आंगन में पढ़िए। यहाँ पर इधर यहाँ चलिए दिखा रहे हैं पढ़ाई अच्छा, वाला भी। एक रहने के लिए? हाँ, ये रहने के लिए। देखिए जब आग लगाए ना तो चौखट के बारे भी जला हुआ है सर। नहीं, আগুনের তাপে ইটগুলো পুড়ে কালো ঝামা হয়ে গেছে। चलिए आइए। वो तो पूरा ईटा जल गया। 1153 খ্রিস্টাব্দে ভক্তিয়ার খিলজি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আগুন লাগিয়ে ধ্বংস করে দিয়েছিল। সেই আগুন 3 থেকে 6 মাস ধরে জ্বলছিল। यहाँ पे टीचर बैठते थे, समझ रहे हैं ना, और नीचे स्टूडेंट। ये 2 पीरियड में नहीं था सर, ये नहीं था? नहीं था। तो इसका निर्माण 3rd फेज में हुआ, अच्छा। क्योंकि आंगन में स्टूडेंट बैठते थे, यहाँ पे टीचर, ये पत्थर के पिलर है ऊपर छत। तो ये एक सब्जेक्ट ये टीचर बैठते थे और ये पे आंगन में एक सब्जेक्ट का एक पोस्ट। अच्छा। सर उस समय यहाँ की मूर्ति को लाइटेड करने के लिए ये सोलर पैनल लगा हुआ है। ये माइका स्टोन है, और इस पर जब सूरज की लाइट, चंद्रमा की लाइट पड़ती थी ना, तो इसके रिफ्लेक्शन से रूम लाइटेड होता था। अच्छा अच्छा। ये जो दिख रहा है चमक रहा है ना, हाँ हाँ, माइका है। माइका है सर। तो अभी भी इसमें चमक है, जिस समय फिनिश करके लगाया होगा। ये स्टोन तो यहाँ पर मिलता है, कोडरमा वो में सर, झारखंड कोडरमा, झारखंड में वहाँ पर मिलता है। कोडरमा में माइंस है इसका नवरत्न का। और वो तो पूरा पूरा पीछे है। वो देख लीजिए, तो कुआं हो गया, और ये गोदाम था जिसमें एक कुआं और एक गोदाम। इसी में पहला पिक्चर जो देखे थे ना, ये था। इसका छत बच रहा है 1300 साल पुराना। देख के आइए, फिर आगे चलिए। अच्छा अच्छा। এটা ছিল একটা মন্দির, আর এই মন্দিরের সামনে যে স্টোনটা আছে ওটা মাইকাযুক্ত স্টোন। চাঁদের আলো এই স্টোনের উপর রিফ্লেক্ট হয়ে মন্দিরের ভিতরে যেত। ওখানে মন্দিরের ভিতরে আলো করার জন্য এই স্টোন ব্যবহার করা হতো। এই ঘরটা ছিল খাদ্যশস্যের গোডাউন। এখানে পোড়া চাল পাওয়া গেছে। বাহ, পুরো সিলিংটা যে ইট দিয়ে করেছে রাউন্ড টাইপের, পুরো রাউন্ড। আমি ক্যামেরা কতটা বোঝাতে পারবো বুঝতে পারছি না, পুরো রাউন্ড। তখনকার দিনে সিলিংটা রয়েছে, তখন তো আর ছাদ হতো না, ছাদটা ঠিক এইভাবে করা হতো। সেই যুগে সিমেন্ট বালিতে তৈরি করা ছাদ আবিষ্কার হয়নি, তখন এই খিলানাযুক্ত ছাদ তৈরি করা হতো, সেটা ইট দিয়ে। এটা কুয়া, ওখানে যে ব্যবহার করা হতো। আরে বাবা, তো অনেক ডিপ রে। एक 108 और कितना हॉस्टल था? 108 अकॉर्डिंग टू ह्वेनसांग के अनुसार। अच्छा। और ये क्या बोलो बात है? ग्रीनरी हाउस है, जला हुआ चावल इसमें। यहाँ पर चाल मिला? हाँ, এই উঁচু জায়গাটায় শিক্ষকরা বসতেন আর ছাত্ররা বসতেন নিচে। এখানে স্টোনের অনেকগুলো পিলার ছিল যেটা ধ্বংস করা হয়েছে। हुआ लॉजिक, ग्रामर, एस्ट्रोनॉमी, मेटाफिजिक्स, मेडिसिन, फिलोसफी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर, स्कल्पचर, योगा, मेडिटेशन, मैथमेटिक्स, लॉ, ये सब सब्जेक्ट। लेकिन एक स्टूडेंट का ऐसा ना, अलग अलग स्टूडेंट का होता है? एक स्टूडेंट को 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता था। अच्छा। अब उतना सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ पाइएगा? होना है, पागल हो जाएगा आदमी। वो तो सही है, लेकिन मान लीजिए कि डॉक्टर में जो पढ़ रहे हैं, हाँ। मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो उसी में चल जाइए सर्जरी, है ना, तो टच थेरेपी, हाइड्रोपैथी, नेचुरल थेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, फिर उसी में आगे जो है आपका एनिमल हस्बेंड्री। এ হলো একটা বিভাগ। প্রতিটা বিভাগে এবং ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা, একটা করে কুয়ো, একটা মন্দির এবং পড়াশোনার জন্য একটা জায়গা, এরকম ব্যবস্থা করা আছে। श्राइन का मतलब समझ रहे हैं? छोटे छोटे मंदिर को श्राइन कहते हैं। अच्छा। तो स्टूडेंट लोग जब मूर्ति बनाते थे तो अपने जो है सबसे खास मूर्ति जो काफी पॉपुलर हुआ वो यहाँ रखते थे। अब नया जो स्टूडेंट आता था उसको देख के फिर बनाता था। ये एक तरह से आपका वर्कशॉप में श्राइन टाइप का हो।
ছাত্ররা যখন মূর্তি বানাতো তখন যেটা সব থেকে ভালো হতো সেটা এখানে রাখা হতো এবং নতুন ছাত্ররা সেটাকে দেখে আবার নতুন একটা মূর্তি বানাতো। তো এই জন্য এটাকে বলা হতো শরাইন টেম্পল। এগুলোকে বলা হয় স্তূপা। শিক্ষকরা এবং শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিরা যখন মারা যেতেন তখন তাদের চিতাভস্ম এখানে রেখে তারপর এই স্তূপটা তৈরি করা হতো। राजा का उद्यान होने के कारण जो है उसने 4 बार स्तूप बना। फिर बाद में 500 साल बाद बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया, हीनयान और महायान। समझ रहे हैं? तो महायान वाले मूर्ति पूजने लगे, तब उन्होंने इसके ऊपर स्तूप को ढक करके बहुत सा मंदिर बना दिया। तो इसके चारों तरफ 1 सहस्त्र स्तूप होता था, अभी तो टूट करके बहुत कम बच रहा है। फिर जब यूनिवर्सिटी बन गई 800 साल बाद, तो यहाँ 10,000 स्टूडेंट पढ़ने लगे, तो 10,000 बच्चों की पूजा प्रार्थना के लिए 108 मंदिर बने। तो ये 2 पार्ट में बट गया, एक पार्ट टेक्निकल एजुकेशन का जगह और एक पार्ट आपका स्पिरिचुअल एजुकेशन का जगह। अच्छा, धर्मशास्त्र। हाँ, धर्मशास्त्र अलग चीज है, स्पिरिचुअल में सब कुछ आ गया, योगा मेडिटेशन ध्यान चिंतन धर्मशास्त्र, समझ रहे हैं ना। तो धार्मिक कक्षाएं इधर, मिराकल चीज वाला इधर और उधर वाला टेक्निकल। अच्छा अच्छा। এখানে ধর্ম, বিশেষ করে বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, চিকিৎসা, জ্যোতিষবিদ্যা, গণিত ইত্যাদি বিষয় শেখানো হতো। कुमार कुमार गुप्त, कुमार गुप्ता, हर्षवर्धन और धर्मपाल। अच्छा, 3 युग का 3। 3 युग का 3। अच्छा, এখানে যে তিনটে সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে এই তিনটে সিঁড়ি তিনটে সময়কালে বানানো হয়েছিল। इसके नाम का नया यूनिवर्सिटी সেটা হলো কুমারগুপ্ত, হর্ষবর্ধন এবং ধর্মপাল। और वहाँ पर जो मंदिर था ना वो आपने, ऊपर मंदिर था, अभी बेस है सर। अच्छा वो मंदिर किस बौद्ध धर्म का? सभी यहाँ बौद्ध धर्म के ही मंदिर मिले, लेकिन मूर्तियाँ हिंदू धर्म से ही रिलेटेड मिली। हो सकता है अगर दूसरा जगह हो जो उसको नष्ट कर दे ये सब स्तूप है ना? टोटल। ये छोटा वाला? देखिए श्रद्धालु लोग जो है अच्छा, आए अच्छा, तो अब मर गए तो नहीं बना पाया यहाँ के स्टूडेंट लोग, मेंटेनेंस लोग, जो श्रद्धालु डोनेट किए वही बनाते थे, तो अपनी इच्छा से छोटा बड़ा। अच्छा, ये इसी हिसाब से छोटा बड़ा था ना? अच्छा, और जो मंदिर है जी। वो मंदिर, हाँ वो छोटा वाला श्राइन है, देखिए आइए ना, मूर्ति ऐसा होता था। इसमें देखिए मूर्ति दिख रहा है आपका, ये पत्थर वाला जो नहीं है स्तूप, इसमें बुद्ध है। फिर उसमें जो कुर्सी टाइप का देख रहे हैं वो भी मंदिर था, तो उसमें छोटा छोटा भगवान बुद्ध का मूर्ति दिख रहा है। तो बुद्धिस्ट है। এখানে ছোট ছোট মন্দিরগুলোকে বলা হয় শরাইন টেম্পল, আর যে ছোট ছোট স্তূপগুলো আছে এগুলোকে স্তূপা। इधर फिर होस्ट আর পেছনে বড় বড় তিনটে মন্দির আছে। है ना, आइए इधर चलते हैं सर। इधर अरे वो क्या था? वो मंदिर सर, ये वो पूरा? हाँ 150 फीट लंबा, 150 फीट चौड़ा, अभी 80 फीट हाइट का मंदिर, हाँ, लेकिन अब इतना ही बच रहा है। এই দিকটা ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হতো, আর আমার ঠিক ডান দিকে अगर जो टाइम है তা तो पूरा সেখানটা देख হচ্ছে सकते हैं, টেকনিক্যাল लौटने के लिए सर উপরে শিক্ষা দেওয়া হতো। আর সেখানে কিছু হোস্টেলও ছিল। दिखा देते हैं इसको। देखे थे एक जगह से तो पता नहीं चलेगा आपको, वहाँ घूम घूम के ना पूरा देखे। हाँ हाँ हाँ। तो ये कुआं हो गया, एक वो मंदिर हो अच्छा, गया, वो पहले एक टाइम किया का- ये मंदिर था। हाँ, वो टीचर प्लेस हो गया। वो ओटा टीचर प्लस। हाँ वो फर्स्ट टाइम बोला, तब ग्राउंड अच्छा, अच्छा, लेवल वो अच्छा, था, अच्छा। ये लेवल था। फिर दूसरा टाइम हर्षवर्धन ने ढक दिया पूरा इस लेवल तक के, तो ये हो गया चूल्हा, जहाँ एक्सपेरिमेंट होता था और खाना बनाते थे। अच्छा। दो है, एक वो एक ये, एक में एक्सपेरिमेंट, एक में खाना बनाना, वो हो गया टीचर प्लेस। ये सब रूम है। और ये जो हॉस्टल का रूम है। हाँ तो चूंकि सेम रूम है, इसमें 32 रूम है, अच्छा तो ये अलग विषय का हो गया, अलग सब्जेक्ट का हो गया। अच्छा, ये ये भी बात रूम है उसी टाइप का सब रूम। है। और ये स्टोन का पहले से ही था? हाँ इसका टूटा हुआ है सर, उधर देखिए। यही स्टोन था ना? उधर दिख প্রতিটা বিভাগেই চারিদিকে ছাত্রদের থাকার জন্য ঘর ছিল, আর মাঝখানে বারান্দায় পড়াশোনা করা হতো। শিক্ষকরা বসতো উপরে আর ছাত্ররা বসতো নিচে। প্রতিটা বিভাগেই একটা করে কুয়া ছিল, একটা মন্দির ছিল। খোদাই করার পর যে ধ্বংসাবশেষটা পাওয়া গেছে তারই একটা নকশা বা ম্যাপ। এটা একটা মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ। যখন সারা বিশ্বের কোথাও কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ছিল না, তখন আমাদের দেশে ছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়। সত্যি খুব গর্বের বিষয়। সেটা বানিয়েছিল 5ই শতাব্দীতে, আর সেটাকে ধ্বংস করা হয়েছিল 12 শতাব্দীতে। এখানে ইসলামিক বিষয়ে কোনো পড়ানো হতো না বলে ভক্তিয়া খিলজি এটাকে ধ্বংস করেছিল।
আমার এই ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করুন, শেয়ার করুন এবং কমেন্ট করুন। আর যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেনি তারা সাবস্ক্রাইব করুন, সঙ্গে বেল আইকনটি অন করে রাখুন। আজ এই পর্যন্ত, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিওতে।